Hello and welcome dear students to our YouTube platform, that is Study India Study. So student, again we are back for JEE crash course. और student, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा that is very important topic, matrices and determinant. Right students? So आज हम करने वाले हैं matrices and determinant. Student, from this topic, in every JEE paper there are two questions. दो क्वेश्चन हर पेपर में रहते हैं जी इससे, राइट. सो जनरली जो क्वेश्चन रहते हैं विल कवर ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन, राइट. सो सबसे पहले स्टूडेंट्स, once again I request all of you to please subscribe to our channel, that is Study India Study, and watch our video and share in your group, right, so that it will be a morale booster for us also, right. So we'll be beginning with some basic concepts जो आपको इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. देन वी विल मूव आवर स्टडी टू द क्वेश्चंस. सो इन दैट क्वेश्चंस विल कवर जो आपके लेटेस्ट JEE 2020 के क्वेश्चंस हैं, राइट, जो जनवरी एग्जाम्स हुए हैं. सो विल कवर दैट क्वेश्चन एज वेल एज क्वेश्चन फ्रॉम द JEE 29 एग्जाम्स, राइट स्टूडेंट्स. तो चलिए स्टूडेंट्स करते हैं अपनी स्टडी मैट्रिसेस पे शुरू. सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज एन मैट्रिक्स. Matrix is an arrangement of numbers in rows and column. Student, you can see this is a matrix. Here we have arranged these numbers A11, A12 in the form of rows and column. You know this is called a matrix. Now you can see this. In this there are n columns, means first column, second, third and up to n. This vertical rows are known as, vertical lines are known as columns, and horizontal lines and rows are known as rows, means these are columns and these are rows. So in this matrix we have m rows and n columns. So we write m into n, and this m into n is known as order of the matrix, order of the matrix, right. So another thing which you should know is elements. These numbers are known as elements of the matrix, right students. So after this we will learn about the type of matrices. So now students we will understand about the type of matrices. So फटाफट से करते हैं, ये आप सब लोगों ने स्टडी किया हुआ है. So एक बार रिवाइज करते हैं कॉन्सेप्ट. नल और ज़ीरो मैट्रिक्स. इन दिस मैट्रिक्स एवरी एलिमेंट इज ज़ीरो, दैट इज नोन एज नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स, number of rows and number of columns are same. Diagonal matrix, that matrix in which the diagonal elements are non-zero and all other elements are zero. Scalar matrix, it's a diagonal matrix in which the diagonal elements are same. दोनों क्या होते हैं स्टूडेंट्स, मैं एक एग्जांपल लेके आप लोगों को डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ. सपोज दिस इज 2 0 0 0 root 2 0 0 0 1. So this is a diagonal matrix. If you take 2 0 0, or can you take anything, suppose आपने 3 ले दिया, this diagonal is 3. So this is called scalar matrix, right. Identity matrix, you know, this is represented by capital O. Identity matrix is represented by I, means it's a diagonal matrix with all elements 1, right. Now this is an identity matrix of order 3, upper triangular and lower triangular matrix. Students, just understand these two matrices. Upper triangular is this matrix. This is known as upper triangular matrix, means if you take this matrix, all these elements, they are known as upper triangular matrix. So and we know that generally we represent any matrix that is Ij by m into n, where Aij is the element of the matrix. Now here this element is your A11, 1 2 1 3. If you can see here, what is the condition? I is less than or equal to j for
upper triangular matrix. If here I is either equal to j or less than j, then it is an upper triangular matrix. Similarly, for lower triangular matrix, this is upper. If you take lower triangular matrix, the triangle, this triangle formed, this is your lower triangular matrix. And in lower triangular matrix, I is greater than or equal to j. This is a condition for lower triangular matrix. So these are the different type of matrices which we generally come across in the exams. Then students, we have one very important concept, that is transpose of a matrix. Right? Student, if you have any matrix A, that is 1, 2, 3, 2, minus 5, 4, 6, 1, 0, अगर आप इसके रोज एंड कॉलम इंटरचेंज कर देते हैं, so that matrix is known as transpose of A. So it is represented by either A dash or sometime it is written as AT. So you just interchange rows and column, right? So this matrix is known as transpose of the matrix. Now students, we have some important properties of transpose of a matrix. First is, if you have A dash whole dash, this is equal to again the matrix itself. If you have transpose of A whole transpose, that is equal to A. Next you have is, if you are having A plus B raised to power transpose, that is equal to A transpose plus B transpose. This is the second property. Third property is, students, K into A, where K is some non-zero constant. You take its transpose, that is equal to K into A transpose. Then students, the most important property for transpose, what is this property? If you have AB whole transpose, this is equal to B transpose A transpose. Most of the time the question is there on the uses of this property. ये जो यूज़ है स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टी आपके पास क्वेश्चन में जनरली यूज़ होती है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वी विल अंडरस्टैंड अबाउट सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस. सी, what is a skew symmetric matrix? If transpose of a matrix is equal to the matrix itself, if transpose is equal to the matrix itself, that matrix is known as symmetric matrix. Next is, we have skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix. What is skew symmetric matrix? When students, transpose of a matrix is equal to minus of the matrix, then this is called a skew symmetric matrix. Now we can also represent a skew symmetric matrix. Suppose we have any matrix, then skew symmetric matrix can also be represented as 1 by 2 A plus A dash, right? So this is the way to represent skew symmetric matrix. This can be A dash or A because it is a symmetric matrix. Here, if you take any matrix A, this can be represented as A minus A dash. So that will be your skew symmetric matrix. Now here A is a skew symmetric matrix. Now student, if A dash is equal to minus A, so minus minus will be plus, 2A upon 2, that will be A itself. So this is an important property. Sometime there may be use of this property in the questions. So now students, we will understand some special matrices. First is idempotent matrix. Idempotent is when A square is equal to A. That matrix is called idempotent. Nilpotent, when A raised to power K is a zero matrix or null matrix. Here K belongs to natural numbers. Then is involutory matrix. Involutory means when A square is equal to I, that is identity matrix. That is known as involutory. And student, this is a bit important, right? So ये जो है आपके पास, ये आपने अच्छे से करनी है जी.
that is orthogonal matrix. Orthogonal is A dash into A is equal to A into A dash is equal to I. That is product of transpose of a matrix into matrix itself is equal to identity matrix. This is called orthogonal matrix. Now students, we will understand one again more thing, that is trace of a matrix. Now what is trace of a matrix? This is also sometime question is there on this concept. Now students, suppose if you have a matrix A, that is Aij, and its order is m into n, right? So trace of a matrix, it is written as TR A, it is written as summation I moves from 1 to n, right? And this is the sum of A Ij, right? Means I changes but j remains the same. Ij will be, or rather you can say here it will be this I and j is remain same, right? I into I, where see if you have a matrix A11, 1, 2 up to A21, 2, 2, so on, right, up to AM1 up to AMN, right? So all these diagonal element, sum of these diagonal element is trace of the matrix. If you will write plus 2, 2, 3, 3 plus up to Mn, this is known as trace of the matrix. Now there are certain properties of trace, properties of trace of a matrix, right? Those properties are, number 1, trace of, अगर आप एक मैट्रिक्स को लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हैं वेयर लैम्डा इज नॉन ज़ीरो कांस्टेंट, देन इट इज इक्वल टू लैम्डा इनटू ट्रेस ऑफ ए. Second property is trace of A is also equal to trace of transpose of A. Third is trace of two matrices AB is equal to trace of B into A. So and there was a question on trace of a matrix in JEE 2020. So we will be discussing that question when we will be do the questions. So now students, after matrices we move to the concept of determinants. Now what is determinant? Determinant is any number, right, which is associated with a matrix, right? So if you have any matrix, suppose A11, 1, 2, 2, 1, 2, 2. Suppose we have taken this matrix A, right? So any number which gives the value of this determinant, the value of this matrix, that is this or this, it is called the determinant of the matrix. So determinant is a number which is associated with the matrix such a way that this matrix is represented by that number is called the determinant of that matrix, and it can be find out by expanding the rows and columns. Suppose students, we have this matrix 2 by 2, so its determinant is equal to A11, 2, 2 minus A12, A21. So this is the value of this matrix, or this is a number which is associated with this matrix. If you take the example of a 3 into 3 matrix, suppose you have a matrix B, that is B11, B12, B13, B21, 22, 23, 31, 32, 33, right? So then determinant of B will be equal to, we can expand this determinant which you people have done while preparing for your NCERT exams, CBSE exams. B11, it is equal to B22, B33 minus B23,
B32 minus B12 B21 into B33 means when you have done this, product of these two minus product of these two. And similarly for this element, when you have done product of these two minus product of these two, right, plus when you are expanding along the third element, that is B13, so product of these two minus product of these two, right. So this is the value of this determinant, right. Now students, we understand about the product of two determinants. Product of two determinants. Suppose we have one determinant A, that is A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, right. Second determinant we have is B, that is alpha 1, alpha 2, alpha 3, beta 1, beta 2 and beta 3, gamma 1, gamma 2 and gamma 3. So now when we have to take the product of these two determinants, that is determinant A into determinant B. So the product of these two determinant is the product of their products. So how will multiply this? First row into first row of this, that will be your first elements, right. For second element, first row with second row. So now what that will become? A1 beta 1 plus A2 beta 2 plus A3 beta 3, right. Similarly for third element, first row with third row. So that can be, we can write it here. So that is A1 gamma 1 plus A2 gamma 2 plus A3 gamma 3. So this way you can multiply it. Similarly for second element, second row with first row, second element, second row with second row, third element, second row with third row. Similarly third row with first element आ जाएगा, third row with second element of the third row, third row with third row, third column का element आपके पास आ जाएगा. So this way you can find out the product of two determinants. Now students, after this we have the properties of determinant. Properties of determinants. Now students, if we talk about the properties of determinant, the first property is, I'll do it in brief because आप सब लोगों ने किया है ये बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए. So all of you, I think, I assume कि most of you know the properties. So first property क्या होती है students? If you interchange, first property is determinant of A is equal to determinant of A transpose. Means आपने row and column interchange किए, so then the value of determinant does not change. Second होती है students, if two rows or columns are identical, then determinant becomes 0. Third is, if you interchange any two rows or any two columns, the value of determinant changes its signs. Means changing two rows or two columns, rather interchanging two rows or two columns, determinant becomes minus determinant, right. Third property is this. Fourth is, a determinant can be expressed as the sum of two determinants, right. Next property is, you can interchange any two rows. जब भी आप rows interchange करते हैं, so that we have done, rows becomes negative. Next property is,
where you can apply the sum operations, like you can add the rows and columns of the determinants. Next property is you can apply this operation plus lambda into Rj. So these are the students properties of the determinant, right? So now one more property which we are left, that is if you multiply any row by any non-zero number, right? So then the value of the determinant is multiplied k times, right? So this is another property. Now students, again an important formula, you can find out the area of the triangle by the determinant method. अगर आपके पास ट्राइंगल की वर्टिसेस गिवन है x1 y1 x2 y2 x3 y3, then area of triangle is half mod of x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1. mod स्टूडेंट इसलिए लगाया है कि सिंस एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है, बट एरिया विल बी ऑलवेज पॉजिटिव. So that's why we have put the mod. Now students, if you are having, if these points are collinear, then आपके पास जो mod है, area of triangle will be 0. So then you can write x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1. That will be equal to 0. सो द कोलिनियरिटी की कंडीशन है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है. नाउ स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड व्हाट आर माइनर्स एंड व्हाट आर कोफैक्टर्स ऑफ ए मैट्रिक्स. अगेन आपका जो एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है, यू मस्ट हैव डन. इफ़ यू हैव ए मैट्रिक्स A11 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3. So every element of this matrix will have a minor and will have a cofactor. माइनर को स्टूडेंट्स हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? सपोज फर्स्ट एलिमेंट का हमने माइनर निकालना है, कोफैक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल A, राइट? सो नाउ द माइनर ऑफ दिस एलिमेंट, इफ़ वी हैव टू फाइंड द माइनर ऑफ दिस एलिमेंट्स, आपने ये वाला पार्ट कट कर देना है, ओनली दिस पार्ट जो मैंने सर्कल किया है. इफ़ यू टेक द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस पार्ट, दैट इज योर माइनर. एनी एलिमेंट्स जिसका भी आपने माइनर फाइंड आउट करना है, सपोज आपने दिस एलिमेंट का फाइंड आउट करना है, सो दिस कॉलम एंड दिस रो, अपार्ट फ्रॉम दिस रो 4 एलिमेंट्स आपके पास जो बच रहे हैं, इनका आपने इसी पोजीशन पे रख के डिटर्मिनेंट लेना है, दैट विल बी योर माइनर. And cofactor of any element will be -1. Suppose if here are I and j, so this will be I plus j into mij. This is cofactor of the matrix. So this way students you can find out minor and cofactor of a matrix. Now with this minor and cofactor you can also find the adjoint of a matrix. Adjoint ऑफ ए मैट्रिक्स. एडजॉइंट जो स्टूडेंट्स आपका रहता है, एडजॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ADJ, एडजॉइंट ए. और आप क्या करेंगे, एवरी एलिमेंट का आप कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे, और कोफैक्टर की जो पोजीशन है A11, यहाँ पे A12 होना चाहिए, बट वी टेक इट्स ट्रांसपोज, हेयर इट विल बी A12 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 and 3 3, right? That is known as your adjoint of A. Similarly, with the help of adjoint of A, you can find out inverse of a matrix. Inverse of a matrix. To find out inverse of a matrix, first thing is you have to check the determinant of A. If determinant of A is 0, then matrix is singular, and A inverse does not exist. A inverse does not exist. If determinant of A is not equal to 0,
then matrix is non-singular and A inverse exists, right? So students, in this case you can find the inverse, and what will be the inverse? Inverse of A 1 upon determinant A into adjoint A, right? So this way you can find out inverse of a matrix. So now students, we move to the properties of adjoint. So यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका यूज़ आपके पास क्वेश्चन में काफ़ी आता है. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई. स्टूडेंट ये जो प्रॉपर्टी है, दिस प्रॉपर्टी वी हैव यूज टू फाइंड आउट द ए इनवर्स. जब हमने ए इनवर्स फाइंड आउट किया था लास्ट स्लाइड में, ए इनवर्स वाज इक्वल टू दिस. सो दिस रिजल्ट हैव कम फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी, राइट? So A into adjoint A. So now if you have to find the A inverse, this A can be multiplied, right? So हमारे पास from this property we get this result, right? Then what we have is adjoint of A determinant is equal to determinant A raised to power n minus 1. So this is also a very important property. So first two are very important properties. Next is adjoint of AB is equal to adjoint A into adjoint B. Next is adjoint of A transpose is equal to adjoint A whole transpose. Next is adjoint of adjoint A is equal to determinant of A raised to power n minus 2 into A if determinant A is not equal to 0. This should be not equal to 0, right? Because if it is singular, then this entire thing will become 0. Next is these two properties are also very important, students. Adjoint of A whole determinant, that is equal to A determinant raised to power n minus 1 square. Again condition is it should be a non-singular matrix. So these properties are used in many of the question, and even in January exam I think this property के ऊपर एक क्वेश्चन था स्टूडेंट्स आपके पास, जो प्रॉपर्टी आपने यूज़ करनी थी. नाउ स्टूडेंट्स, विद द हेल्प ऑफ इनवर्स ऑफ ए विल सी वी कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ, राइट, और सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. वाई वी आर यूजिंग स्टूडेंट्स सिस्टम? बिकॉज वी कैन फाइंड आउट, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एज वेल एज 3 वेरिएबल्स. Solution of system of linear equations, right? So now students, suppose you have 3 equation, a1x plus b1y plus c1z is equal to d1, a2x plus b2y plus c2z is equal to d2, and a3x plus b3y plus C3z is equal to D3, right? So this system can be written as a product of AX equal to B, where A is equal to A1 B1 C1, A2 B2 C2, and A3 B3 C3. This is your A, and your x will be x1, y1, x, y and z, and your b will be equal to d1, d2 and d3. So from this you can find out the solution of this pair of system by matrix method. Student, we have 4 methods to find out the solution of these equations in the matrices and determinant. First method is matrix method, another is by elementary operation, third is these two methods, elementary operations and matrix method, they are part of your NCERT exams, right? So now here another 2 method, that is Cramer rules, that is the most important rule from JEE point of view. स्टूडेंट, कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं होता है जिसके अंदर क्रैमर रूल के ऊपर क्वेश्चन नहीं होता. एंड द फोर्थ वन इज़ कैली हैमिल्टन थ्योरम.
सो दैट वी डोंट डू, बिकॉज जनरली उसका एग्जाम आपके पास एडवांस में रहता है, मेंस में नहीं रहता है. सो विल बी डूइंग मैट्रिक्स मेथड एंड क्रैमर्स रूल्स इन डिटेल टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. मैट्रिक्स मेथड में स्टूडेंट्स बेसिक आपने किया है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स if there are two conditions. If b is not equal to 0, that is system of equation is non homogeneous. Student, non homogeneous क्या होता है? जब when these elements d1 d2 d3 are not zeros, that is b is non zero and determinant a is also not 0, right? In that case you can find out the value of x, that is your variables, by finding x is equal to A inverse B. For that you have to find the inverse of the matrix A, multiply it by B, you will get the value of x, y and z. So now students, this is all about the matrix method. ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है. यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास है केस 1. हमने क्या लिया? हमारे पास जो B है दैट इज़ नॉट ज़ीरो, दैट इज़ नॉन होमोजीनियस. जब आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन नॉन होमोजीनियस है, राइट. फर्स्ट केस हमने डिस्कस कर लिया. व्हेन डिटर्मिनेंट ए इज नॉट ज़ीरो, सो सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल हैव ए यूनिक सॉल्यूशन दैट इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी. सेकेंड वन में क्या है कि व्हेन ए डिटर्मिनेंट ए इज ज़ीरो, अगर आपके पास डिटर्मिनेंट ए ज़ीरो है देन यू विल फाइंड दैट एडजॉइंट ऑफ ए, प्रोडक्ट लेंगे बी के साथ, दैट शुड नॉट बी ज़ीरो. अगर प्रोडक्ट दोनों का नॉट इक्वल टू ज़ीरो है then system is inconsistent and it does not have any solution. Inconsistent mean no solution. Consistent means solution whether unique or infinitely many. थर्ड केस में स्टूडेंट्स क्या है? if determinant a is 0, right, ठीक है, then adjoint a into b equal to 0. देखिए यहाँ पे 0 नहीं था, यहाँ 0 है. then system can have infinitely many or no solution. मीन्स इट कैन बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. दोनों ही केसेस आ सकते हैं, राइट. अगर ये दोनों केसेस आते हैं स्टूडेंट्स, इसको फाइंड आउट करने के लिए वी यूज़ अनदर मेथड्स. तो यहाँ तक आपके पास अगर ये दोनों चीज़ें आ रही हैं, नो सॉल्यूशन आ गया और यहाँ पे नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, बोथ द केसेस कैन बी देयर. हियर ए हमारे पास जो हमने मैट्रिक्स ली थी द सेम, एक्स एंड बी, दीज हैव द सेम रिप्रेजेंटेशंस. सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इसका सेकेंड केस डिस्कस करते हैं. सेकेंड केस में क्या था? सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज़ होमोजीनियस. होमोजीनियस मीन्स आपके पास जो B के एलिमेंट्स हैं दे ऑल आर ज़ीरो, मीन्स दीज ऑल एलिमेंट्स आर ज़ीरो. सो नाउ इन दिस केस फर्दर टू केस आ जाते हैं. फर्स्ट इज मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, सो देयर विल बी ट्रिवियल सोल्यूशन. ट्रिवियल मीन्स x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट. x, y, z are 3, all 3 are 0, right. Second is students, when determinant A is 0, अगर determinant A भी 0 आ गया मीन्स सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो सिस्टम विल हैव नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एंड दैट इज फाइनाइट इन नंबर, मीन्स आपके पास कोई यूनिक सोल्यूशन आएगा, राइट स्टूडेंट्स. सो नाउ स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, once again I saying most important topic of this chapter, matrices and determinants, and that is Cramer's rule. Cramer's rule. स्टूडेंट जेई का कोई एग्ज़ाम ऐसा नहीं होता है जो इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन ना आए, राइट. यू कैन पिक एनी क्वेश्चन, एनी पेपर फ्रॉम विच एवर ईयर, इसका क्वेश्चन ज़रूर आएगा आपके पास, राइट. क्रैमर रूल का एप्लीकेशन का क्वेश्चन 100%, नॉट इवन 99.9%, 100% विल बी देयर. राउ स्टूडेंट्स, अब ये अप्लाई कैसे होता है अंडरस्टैंड करते हैं. अगेन हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, राइट. a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3, राइट. सो नाउ व्हाट वी डू, हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं. डिटर्मिनेंट क्या होता है जी? अगेन कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड का मैट्रिक्स. सो दिस इज a1 b1 c1, a2 b2 c2,
A3 B3 C3. This is our delta. Now we take delta 1, right? Delta x भी लिख सकते हो आप इसको, that will also be 1 and the same thing, delta 1 also. So what is this? x के जो कोफिशिएंट है उनके प्लेस पे आप कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट्स रख देते हैं जी. So this will be d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3. Similarly delta 2 that will be equal to b के प्लेस पे आपके पास b वाले कोफिशिएंट के प्लेस पे d वाले कोफिशिएंट्स आ जाएंगे. a1 a2 a3 d1 d2 d3 c1 c2 c3 and delta 3 is equal to, अब z वाले कोफिशिएंट के प्लेस पे कांस्टेंट टर्म a1 a2 a3 b1 b2 b3 d1 d2 d3, राइट जी. सो आपके पास स्टूडेंट्स डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 ये चार आपके पास डिटर्मिनेंट्स आ गए हैं. जब भी आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन निकालना है, सबसे पहला जो रूल होता है स्टूडेंट इसमें, दैट इज़ व्हेन b इज़ नॉट इक्वल टू 0. ये केस 1 होता है जिसका b इज़ नॉट इक्वल टू 0, दैट इज़ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सॉरी नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. सो आपके पास जो x की वैल्यू आ जाती है, योर x विल बी इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y इज इक्वल टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, z इक्वल टू डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा. अनदर वन कंडीशन इज डेल्टा, दैट इज योर डिटर्मिनेंट शुड नॉट बी 0. अगर डिटर्मिनेंट 0 होता है तो ये नॉट डिफाइन बन रहे हैं. सो दीज टू कंडीशन आर सेटिस्फाइड, देन यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ यूनिक सॉल्यूशन. इस केस में आएगा आपके पास, सो यू विल हैव यूनिक सॉल्यूशन फॉर दिस केस, राइट. सो दैट इज द फर्स्ट केस ऑफ क्रैमर्स रूल. सो नाउ स्टूडेंट्स हम डिटेल में स्टडी करते हैं क्रैमर रूल की कंडीशंस. फर्स्ट केस हमने कर लिया था, दैट इज़ फॉर नॉन होमोजीनियस, मीन्स आपके पास जो कांस्टेंट टर्म्स है दे आर नॉन जीरोज. वहाँ पे क्या था, आपके पास यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है. फर्स्ट कंडीशन, इट्स ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मीन्स डिटर्मिनेंट इज नॉट जीरो, एक्स की वैल्यू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, वाई की वैल्यू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, जेड की वैल्यू डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा. सो दैट्स मीन सिस्टम हैज़ यूनिक सॉल्यूशन. सेकंड केस आ जाते हैं स्टूडेंट्स. अब यहाँ पे जिसके केसेस हैं जहाँ पे क्वेश्चन आता है, सो दिस इज़ अ क्वेश्चन, इफ़ डिटर्मिनेंट इज़ ज़ीरो एंड एट लीस्ट वन ऑफ देम इज़ नॉन ज़ीरो, तो सिस्टम इज़ इनकंसिस्टेंट. मीन्स दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी. आपको क्वेश्चन जब भी आता है, क्वेश्चन में क्या होता है कि जो आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है, दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट्स. आपको या तो फाइंड आउट करना है कि एटलीस्ट ये यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है. वन थिंग कैन बी दिस. अनदर थिंग जो रहती है, जो जनरली रहती है क्वेश्चंस के अंदर, आपको इक्वेशंस में जो कोफिशिएंट्स हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ सम कांस्टेंट्स, अल्फ़ा दे दिया, के दे दिया, ठीक है जी. तो दैट कैन बी द क्वेश्चन. वहाँ पे आपको फाइंड आउट करना होता है नो सॉल्यूशन. कुछ कंडीशन गिवन होती है कि सपोज फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन. तो हम क्या करते हैं, ये कंडीशन सबसे ज़्यादा अप्लाई करते हैं. आप डिटर्मिनेंट निकालते हो, उसको ज़ीरो, अगर आपका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आता है, राइट, तो दैट्स मीन इट हैज़ नो सॉल्यूशन. अगर आपको गिवन है कि नो सॉल्यूशन, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो वी डू द डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो. डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ गया और उसके बाद हम चेक करते हैं कि ऑल दीज आर एटलीस्ट वन ऑफ देम इज़ नॉन ज़ीरो. इनमें से अगर एक कोई भी नॉन ज़ीरो आ रहा है, राइट, सो आपका जो सिस्टम होगा दैट विल बी इनकंसिस्टेंट, दैट मीन इट विल नॉट हैव एनी सॉल्यूशन. थर्ड कंडीशन में क्या है जी, अगर ये चारों डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाते हैं तो देन इट कैन बी बोथ द केसेस, इट कैन बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट के केस में इट विल हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट केस में नो सॉल्यूशन. सेकंड केस आता है स्टूडेंट इसका यहाँ पे, व्हेन b इज इक्वल टू ज़ीरो, मीन्स आपके पास जो कांस्टेंट टर्म्स हैं सारी ज़ीरो हैं, दैट इज़ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज देयर.
if determinant is not equal to 0, that is trivial solution, that is x, y, z, everything is 0. Second, if determinant is not equal to 0, it will have infinitely many solution. So with this we have completed our theory part, students, and this topic, this slide is the most important slide. अगर आपके दिमाग में ये सारी कंडीशन रह जाती हैं तो आपके 4 नंबर बिल्कुल पक्के हैं स्टूडेंट्स. क्वेश्चन आना ही आना है, क्रैमर रूल लगना ही लगना है. सो दिस इज़ द वन टॉपिक, अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हैं सो वन क्वेश्चन इज़ बाउंड टू बी करेक्ट. सो स्टूडेंट्स, वी हैव फिनिश अप आवर ऑल द कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग द मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द जेई पॉइंट ऑफ व्यू. सो स्टूडेंट्स, अब हम रेडी हैं अपने क्वेश्चंस करने के लिए. सो वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस from the JEE exam which were there in 2020 and 2019. So let's start. So चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपनी चैप्टर पे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम JEE 2020, 8 जनवरी, शिफ्ट 2. राइट, अगेन स्टूडेंट्स द मोस्ट वांटेड टॉपिक क्रैमर्स रूल. फर्स्ट क्वेश्चन अगेन सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू चेक द करेक्ट ऑप्शंस. ऑप्शन क्या क्या गिवन है? infinite solution for lambda is equal to 8 and lambda is equal to 2. No solution for lambda is equal to 8 and lambda is equal to 2. So कैसे चेक करते हैं स्टूडेंट्स? Now what we'll do, we'll find out. यहाँ पे देखिए सबसे पहली चीज़ जो b is not equal to 0, that is non homogeneous system of equations जी. अगर आपके पास ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, सो दैट्स मीन फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन d शुड बी इक्वल टू 0. अगर आपके पास d इक्वल टू 0 आ रहा है, सो हम d निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स. व्हाट विल बी d? लैम्डा 2 लैम्डा 4 2 3 लैम्डा 2 5 6. राइट, वी सॉल्व दिस और इसको हम 0 के इक्वल कर लेते हैं जी. तो यहाँ से आ जाता है लैम्डा 18 माइनस 5 लैम्डा माइनस 2 12 लैम्डा माइनस 20 प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू 0 जी. तो यहाँ से इक्वेशन बन रही है स्टूडेंट्स 24 लैम्डा प्लस 40 प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0. तो आपके पास इक्वेशन आ जाती है लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस 6, देन कांस्टेंट टर्म्स इज 16. सो यहाँ पे आपके पास बन गई इक्वेशन लैम्डा स्क्वायर प्लस माइनस 16 इक्वल टू माइनस 16 इक्वल टू 0. फैक्टर बना दिए स्टूडेंट्स, लैम्डा प्लस 8 लैम्डा माइनस 2. तो आपके पास ये फैक्टर्स आ जाएंगे जी. राइट, सो आपके पास जब इनको 0 करते हैं तो लैम्डा की एक वैल्यू आ रही है -8, एक वैल्यू आ रही है 2. इसको रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 8 है. सो दीज 2 सॉल्यूशंस आर नॉट द करेक्ट सॉल्यूशन. नाउ लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई. नाउ स्टूडेंट्स, अब लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई तो 2 चॉइसेस तो आपकी एलिमिनेट हो गई. नाउ बी एंड डी चॉइस, वन इज़ नो सॉल्यूशन, अनदर इज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन. नाउ व्हाट यू विल डू, आप लैम्डा की वैल्यू 2 पुट करके d1 की वैल्यू निकाल लेते हैं जी. d1 क्या आ जाएगा हमारे पास? यहाँ पे हम x के कोफिशिएंट की प्लेस पे कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट्स रिप्लेस कर देंगे जी. 5 8 10 2 3 लैम्डा इज़ 2, राइट, एंड व्हाट इज़ 2 5 6. यहाँ पे d की वैल्यू निकालते हैं जी. d की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 5 18 माइनस 10 दैट इज़ 8 माइनस 2 48 माइनस 50 माइनस 2 प्लस 2 16 माइनस 30. So this comes out to be 4 minus 28 which is not equal to 0. Now student, if it is not equal to 0, हमारे पास क्या सॉल्यूशन आएगा?
if d is equal to 0 and at least one of the d1 d2 and d3 is not 0, so आपके पास आ जाएगा no solution. So right choice will be the D, that is no solution. So student, आज का अपना सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं जी. अगेन बेस्ड ऑन क्रैमर रूल, सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है, आपको बताना है कि विच वन इज़ द करेक्ट चॉइस. नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारे पास केस है, दिस इज़ फॉर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन B0. तो यहाँ पे हम अब D की वैल्यू निकाल लेते हैं. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ D? सिंपल है स्टूडेंट्स, अगर D इक्वल टू 0 आ रहा है देन इट इज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. इफ इट इज़ D इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन इट इज़ ट्रिवियल सॉल्यूशन. सो दो कंडीशन आ रही है हमारे पास. इफ D इज़ नॉट इक्वल टू 0, ट्रिवियल सॉल्यूशन. इफ D इज़ इक्वल टू 0, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. राइट. सो ये दोनों केसेस हैं. तो आप D फाइंड आउट करेंगे, आपकी दो चॉइसेस तो आ जाएंगी. आपने D फाइंड आउट किया जी, 7 6 -2 3 4 2 1 -2 -6. राइट. सो इसको सॉल्व कर लेते हैं जी. डिटर्मिनेंट ऑफ -24 + 4 -6 -18 -2 -2 -6 -4. So this comes out to be 28 into 7, 196. Okay, this will be 20 -20 -140. Right. -20 plus 120 -10 plus 10. So here your D is 0. So आपके पास जो केस आ रहा है दैट इज ऑफ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. तो ये आपके दोनों केसेस तो ठीक है जी, एलिमिनेट हो गए. अब ये दोनों देखने हैं. अब यहाँ पे कंडीशन है कि वेदर दिस कंडीशन और वेदर दिस कंडीशन. स्टूडेंट, जब भी आपके पास D 0 आ जाता है तो आप क्या करते हैं, दोनों में से किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देते हैं. सो व्हाट वी कैन डू, हमें पुट करना है, अप्रूव करना है x इज इक्वल टू 2z और y इज इक्वल टू 2z. वट विल डू, यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए जी. सो x की वैल्यू फ्रॉम हेयर x विल बी 2y + 6z. जब आपने यहाँ पे पुट कर दिया x, सो दिस विल बिकम 6y + 18z, राइट, प्लस 4y + 2z इक्वल टू 0. तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आ रही है दैट इज़ 10y + 20z इक्वल टू 0. सो मीन्स y इज़ इक्वल टू -2z. तो ये कंडीशन तो नहीं आ रही है जी. सो देयरफॉर दिस इज़ द रिमेनिंग आंसर. इस कंडीशन को चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू निकाल के किसी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं जी. आपने यहाँ से y की वैल्यू 2y की वैल्यू निकाल ली है. सो दिस कम्स आउट टू बी x - 6z. इसको वैल्यू को आप फर्स्ट या सेकंड दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं. देखिए हम किसी एक इक्वेशन में पुट करते हैं जी. किस एक इक्वेशन में जब पुट कर रहे हैं इसको, सो दिस कम्स आउट टू बी 2y की वैल्यू 3x प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया 2x - 12z प्लस 2z इक्वल टू 0, 5x - 10z इक्वल टू 0. So x will be equal to 2z. So this is your right solution. So दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. So next question students, it is from again 8 जनवरी पेपर सेकेंड शिफ्ट. बहुत ही ईजी क्वेश्चन था. यहाँ पे आपको 2 × 2 मैट्रिक्स गिवन है. A I is identity matrix of order 2. So you have to find the value of 10 A inverse. Right students? So जब आपको 10 A inverse की वैल्यू निकालनी है, मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड A inverse. A inverse is this. एडजॉइंट A फाइंड आउट करने के लिए आपको 2 by 2 मैट्रिक्स, सिंपली यू कैन फाइंड आउट द एडजॉइंट A. These two values will be interchanged. और जो ये दोनों हैं इनके साइन हम चेंज कर देते हैं. सो दिस इज द वे टू फाइंड आउट. नाउ दिस इज आवर एडजॉइंट A.
आपके पास डिटर्मिनेंट ए कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, 4 2 8 माइनस 10। सो आपके पास जो ए इनवर्स आ रहा है दैट इज -1/10, 4 -2 -9 and 2. So this is your A inverse. Now you have to find 10 time A inverse. So that will be equal to 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस साइन विल बी मल्टीप्लाइड हेयर. सो -2 2 9 एंड -2. दिस इज योर 10 A इनवर्स. नाउ यहाँ से जो वैल्यूज़ गिवन है आप उससे चेक कर सकते हैं जी. आपके पास A गिवन है, I गिवन है. फर्स्ट वाली चॉइस आप लेते हैं 4i. 4i मीन्स 4004 माइनस A, दैट इज़ 2294. आपने सॉल्व किया तो हमारे पास कहीं वैल्यू नहीं आ रही है जी, सेम वैल्यूज़, राइट. आफ्टर दैट आप जब भी आई वाली टर्म ले रहे हैं पहले, सो आपके पास वैल्यूज़ नहीं आ रही है. आप जब ये दोनों चॉइसेस ट्राई करते हैं, a माइनस व्हाट इज़ a, 2294 माइनस 4 इंटू आई, 4 इंटू आई, तो यहाँ पे आपके पास जो सॉल्यूशन आ रहा है दैट कम्स आउट टू बी -2 2 9 0. So again this is not satisfying. Next choice ली a minus 6i. What is a? A is this minus 6i. So ये आपने solve कर लिया. 2 minus 6 is -4. So this is correct. 2 minus 0 2, 9 minus 0 9, 4 minus 6 -2. So this choice student is the correct choice. Simple question था जी. आपने 2/2 मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल के यू आर जस्ट सपोज टू मल्टीप्लाई इट बाय 10 और जो आपके ऑप्शन गिवन थे उसको हिट एंड ट्रायल मेथड से चेक कर लिया आपने. नाउ स्टूडेंट्स अगेन वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम JEE 2020. 9 जनवरी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है ये. यहाँ पे आपको एक 3/3 मैट्रिक्स गिवन है A एंड यू हैव बीन गिवन B इज इक्वल टू एडजॉइंट A एंड C इज इक्वल टू 3A. सो यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट B डिटर्मिनेंट अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ C. देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हम B की वैल्यू हमें गिवन है, C की वैल्यू गिवन है, दोनों की वैल्यू एक ही फॉर्म में है तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देते हैं जी. सो स्टूडेंट व्हाट इट बिकम्स, adjoint B upon C, it can be written as adjoint of adjoint A upon, right. So this can be written as this. Student जब मैं explain कर रहा था आपको concept, so adjoint of adjoint A whole determinant, I have told you a property for this that it is equal to n-1 square, right. So adjoint of adjoint A can be written as determinant of A n-1 whole square upon, this can be written as 3 raised to power n into determinant A. Since हमारे पास order of the matrix is 3, so what this becomes, determinant A 3 minus 1 2 that is 4 upon 3 raised to power 3 27 into determinant A, right. So this thing has been left with you. आपने एक पावर यहाँ पे कैंसिल कर देनी है. सो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ डिटर्मिनेंट A होल क्यूब अपॉन 27. तो हम यहाँ से डिटर्मिनेंट A फाइंड आउट कर लेते हैं जी. दैट विल बी इक्वल टू 1 9 + 4 13 -1 3 - 4 -1 +2 -1 -3 that is -4. So this comes out to be 13 + 1 4. So students this comes out to be 10, but there is something, this is 9 + 4 13 -1 into -1 -1 3 - 4 right +2 into -1 -3 -4, it comes out to be -8 14 that comes out to be 6. So आपने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए 6 into 6 into 6 upon
27, 3, 3, 2, 2. So this comes out to be, students, 8, right? So I have written here 4 in place of 8. So that was the mistake. So इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 6 आ रही है, आपने पुट किया और आंसर आपके पास आ जाता है 8, एंड चॉइस ए इज़ योर करेक्ट चॉइस. लेते हैं स्टूडेंट्स. अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम 9 Jan शिफ्ट 2. JEE 2020 से ही है जी ये भी, राइट. सो द क्वेश्चन इज, आपको fx गिवन है, डिटर्मिनेंट, अनदर कंडीशन इज गिवन a minus 2b plus c equal to 1. सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ f50. स्टूडेंट अगर हम fx को इवेल्युएट कर लेते हैं, उसके बाद x को 50 से या -50 से रिप्लेस करते हैं, सो वी कैन गेट द राइट चॉइस. सो fx फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू यूज़ दिस कंडीशन. इस कंडीशन को स्टूडेंट हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? आपके पास गिवन है a b c, a minus 2b plus c. So what we can do, if we apply the property of the determinant, what we should write, a, that is r1 minus 2r2 plus r3. ये प्रॉपर्टी लगा देते हैं जी. सो व्हाट वी हैव, fx दैट विल बी x. तो ये वाली टर्म हमारे पास क्या बन जाएगी, x माइनस 2x, दिस माइनस ट्वाइस ऑफ दिस प्लस दिस, इन दोनों को ऐड करके ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा. दिस टर्म विल बी 0, दिस विल बी 0, राइट. x प्लस बी, x प्लस सी, x plus 3, x plus 4 and x plus 3, राइट स्टूडेंट्स. तो जब आपने ये वाली प्रॉपर्टी चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हमारे पास x plus 1, x, यस, ओनली 1 विल बी देयर. सो इसको आप एक्सपैंड कर देते हैं जी. सो दिस कम्स आउट टू बी x plus 3 होल स्क्वायर माइनस x plus 2 इंटू x plus 4. सो नाउ दिस इज़ योर fx. 50 पुट कर देते हैं जी. 50 पुट किया है यहाँ पे, सो दिस कम्स आउट टू बी 53 स्क्वायर माइनस 52 इंटू 54. इसको स्टूडेंट सॉल्व करते हैं. सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1. देयरफॉर चॉइस ए इज़ द करेक्ट चॉइस. सो नाउ स्टूडेंट्स, वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम JEE 2020. Now in this question, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है. A is a 3x3 मैट्रिक्स whose elements are from the set. ओके, A के जो एलिमेंट है इन तीनों में से कोई एक, तीनों में से कुछ भी हो सकते हैं. फाइंड द नंबर ऑफ मैट्रिसेस A सच दैट ट्रेस ऑफ AAT इज इक्वल टू 3. हमें कोई मैट्रिक्स A है, वी हैव टू फाइंड हाउ मैनी मैट्रिसेस, हाउ मैनी डिफरेंट A कैन बी देयर if A into transpose of A is equal to 3. Trace of, the trace of, right? So now, first of all, student, let A be any matrix. What will be A matrix? A11, A1, A3, let this is A. B2, B3, C1, C2, C3. So then, transpose of A will be A1, A2, A3, B1, B2, B3, right? So now what is the meaning of trace? Trace is the sum of the diagonal elements. दोनों का हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स. अब जब आप इसका प्रोडक्ट निकालते हैं, यू नीड नॉट टू फाइंड द कंप्लीट प्रोडक्ट, राइट. सो हम जब इसका प्रोडक्ट निकालते हैं, वी ओनली रिक्वायर डायगनल एलिमेंट्स. डायगनल मीन्स ये वाले एलिमेंट चाहिए. फर्स्ट एलिमेंट के लिए स्टूडेंट दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, ये वाली मैट्रिक्स हो जाएगी. सो फर्स्ट एलिमेंट आपका बनेगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर. सिमिलरली दिस एलिमेंट्स के लिए जो सेकेंड वाला एलिमेंट है, व्हाट यू डू, सेकेंड रो विथ सेकेंड कॉलम, सो दिस इज A3. So this will become B1 square plus B2 square plus B3 square. Similarly C1 square plus C2 square plus C3 square.
So these will be the diagonal elements. So trace of AAT, let I take this as x, this as y, and this as z. So this will be equal to x plus y plus z. Now it is given that x plus y plus z equal to 3, right? Now students, आपको एक चीज़ गिवन है यहाँ पे कि a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इक्वल टू 3. सो टोटल हमारे पास एलिमेंट है 3 एलिमेंट्स में से वी हैव टू सेलेक्ट इन सच ए वे कि आपके पास जो ये सम आए ट्रेस का दैट शुड बी 3 आपके पास सम किस तरह से आ सकता है? आप -1 ले रहे हैं, देन आल्सो इट कैन बी देयर. ठीक है जी, आप अगर 1 ले रहे हैं तब भी हो सकता है. सो दिस शुड बी इन सच ए वे कि आपके पास जो टोटल एलिमेंट्स, अगर मैं ये मैट्रिक्स लेता हूँ तो हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर? टोटल 9 एलिमेंट्स. 9 में से आपको इन 3 में से कोई सेलेक्ट करने हैं. सो व्हाट विल बी योर कॉम्बिनेशन? 9C3, राइट? नाउ आपने जब 9C3 लिया है उसके बाद you have to select, you have to take 2 different positions, right? 2 different elements लेने हैं, -1 और 1. इन दोनों की 3 पोजीशंस हैं. सो आप इसको 2⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो दिस इज ए टोटली कॉन्सेप्ट ऑफ परमुटेशन, राइट? तो यहाँ पे आपके पास जो आ जाता है इसको सॉल्व करके 9C3 दैट विल बी 987 अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू दिस विल बी 8. सो दिस इज 3 2 4 3. सो इनको स्टूडेंट्स आप मल्टीप्लाई करते हैं. सो आई थिंक आपका जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी चॉइस सी, दैट इज 672. नाउ स्टूडेंट, दिस प्रॉब्लम इज़ फ्रॉम JEE 2019 और इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी फ्रिक्वेंटली आता है स्टूडेंट्स. आपको ए गिवन होती है 2x2 मैट्रिक्स, यहाँ पे एक ही सम पावर्स होती है, राइट? इट कैन बी 50, पावर इज़ 100, 200, कुछ भी हो सकता है. सो दिस इज़ वेरी मतलब फेमस टाइप ऑफ क्वेश्चन, काफ़ी फ्रिक्वेंटली आता रहता है, राइट? आपको यहाँ पे क्या करना है? अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है जी. सो स्टूडेंट, इसके लिए हम क्या करते हैं? आपको ए गिवन है. जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है स्टूडेंट्स, आप जब a² निकालते हैं, ए मीन्स इट्स लाइक ए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन हो जाता है. आपने जब यहाँ पे 1 निकाला तो यू विल गेट दिस सिमिलर रिलेशन. 2 डाल रहे हैं तो सिमिलर रिलेशन, 3 डाल रहे हैं तो एक सीरीज़ बन जाती है. सो आप ये वाली वैल्यूज़ बड़े ईजीली निकाल सकते हैं. उसके बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी एंगल्स की फॉर्म में, उसको इक्वेट कर देंगे तो आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाती है. तो देखिए किस तरह से करना है ये. आप सबसे पहले a² फाइंड आउट कीजिए जी. दैट विल बी cos अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा एंड cos अल्फ़ा. इसका प्रोडक्ट लिया आपने, cos अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा एंड cos अल्फ़ा. जब आपने प्रोडक्ट लिया सो व्हाट इज बिकम्स cos² अल्फ़ा माइनस sin² अल्फ़ा. So that is cos² अल्फ़ा माइनस sin² अल्फ़ा माइनस cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा प्लस, तो दिस विल बी दिस इनटू दिस, दैट विल बी -2 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा, राइट? सो हियर sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा प्लस sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा, दैट इज 2 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा. Similarly, minus sin² अल्फ़ा प्लस cos² अल्फ़ा. सो cos² अल्फ़ा माइनस sin² अल्फ़ा. नाउ स्टूडेंट, हमारे पास sin 2 अल्फ़ा और cos 2 अल्फ़ा का फॉर्मूला आ गया. नाउ a² इज दिस इज cos 2 अल्फ़ा, दिस इज माइनस sin 2 अल्फ़ा, sin 2 अल्फ़ा cos 2 अल्फ़ा. अब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, दिस एंड दिस आर सेम. स्क्वायर किया, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो एंगल को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ सिमिलरली व्हेन यू कीप ऑन डूइंग दिस, तो आपके पास जो पावर्स आ जाएंगी, पावर जो है वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई होती जाएंगी सारे टर्म्स में. सो देयरफॉर a32 जो हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू cos 32 अल्फ़ा माइनस sin 32 अल्फ़ा
साइन 32 अल्फ़ा एंड कॉस 32 अल्फ़ा। इसको हम इक्वेट कर देते हैं यहाँ से जी, तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ जाती हैं, कॉस 32 अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 और इक्वल टू 0। अगर ये आपके पास 0 आ रहा है या फिर -1 इक्वल टू दिस, तो यहाँ से क्या आ रहा है 32 अल्फ़ा इज इक्वल टू π/2 दैट इज़ 90, तो π/64 इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। आप चारों में से किसी की भी वैल्यू इक्वेट कर सकते हैं। सपोज़ आप यहाँ पे इक्वेट करते हैं तो साइन 32 अल्फ़ा आपके पास 1 आ जाएगा, बिकॉज हेयर इज़ -1, हेयर इज़ -1। सो सिमिलरली हेयर 32 अल्फ़ा इज़ π/2 and again alpha is π/64. So choice C is the correct choice students. चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम JEE 2019, right? So what is there in this question? Alpha and beta are the roots of the equation x square plus x plus 1. So now students look at the equation. Same equation used for cube root of unity. So alpha and beta are the roots of the equation. Means if one of the root is omega, another will be omega square. So we can apply this property here. Then for y is not equal to 0, right, in R, that is real numbers, we have to find the determinants की value, right students? So आपके पास ये दोनों values आ गई, तो what we can do, we can apply the properties of determinant here. आप क्या कीजिए, x1 plus x2 मीन्स R1 goes to R1 plus R2 plus R3, तो यहाँ से बन जाएगा आपके 1 plus omega square which is equal to 0. So then easily you can solve this, right? So property लगा दीजिए, R1 goes to R1 plus R2 plus R3. So what this becomes, y plus 1 plus alpha plus beta, y plus 1 plus alpha plus beta, y plus 1 plus alpha plus beta. This is alpha, this is beta, y plus beta 1 1 y plus alpha. तो अब यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू रखते हैं. सो दिस पार्ट विल बिकम 0 एज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज़ 0. तो स्टूडेंट आपके पास जो मैट्रिक्स बन जाती है y अल्फ़ा बीटा y प्लस बीटा 1 y प्लस अल्फ़ा. y आपके पास कॉमन आ जाता है जी. उसके बाद आप एक्सपैंड कर दीजिए इसको जी. 1 1 1 अल्फ़ा y प्लस बीटा 1 बीटा 1 एंड y प्लस अल्फ़ा. व्हाट यू कैन डू, आप प्रॉपर्टीज़ भी लगा सकते हैं इसकी. इन दोनों एलिमेंट्स को आप ज़ीरो कर सकते हैं. दैट विल बी इवन मोर ईजियर. सो और क्या कर सकते हैं, आप सिंपली यहीं पे एक्सपैंड करके वैल्यू निकाल सकते हैं. तो आपने एक्सपैंड किया जी इसको. सो राइट, सो जब आप इसको एक्सपैंड करते हैं स्टूडेंट्स, सो व्हाट इट बिकम्स, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, ये 1 इंटू दैट विल बी लेंथियर कैलकुलेशन. तो हम इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ एक दो और लगा लेते हैं यहाँ पे जी. इन दोनों एलिमेंट को ज़ीरो करते हैं. दैट इज़ C2 गोज़ टू C2 माइनस C1 एंड C3 गोज़ टू C3 माइनस C1. तो स्टूडेंट जब आप प्रॉपर्टी लगाते हैं तो आपके पास ज़ीरो हो जाएगा. इसमें हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से क्लीन कर लेते हैं एक बार. ये दोनों हमने प्रॉपर्टीज़ लगा दी. प्रॉपर्टी लगाने पे C2 गोज़ टू C2 माइनस C1 एंड C3 गोज़ टू C3 माइनस C1. सो व्हाट यू गॉट, y1 अल्फ़ा बीटा 0 y प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा 1 माइनस बीटा 0 1 माइनस अल्फ़ा एंड y प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा. राइट, सो नाउ यू कैन एक्सपैंड दिस. जब आपने एक्सपैंड किया इसको जी, y इंटू, सो दिस विल बिकम y प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू y प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस 1 माइनस अल्फ़ा 1 माइनस बीटा. सो यहाँ पे आप अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू लगा के स्टूडेंट इसको सॉल्व कर सकते हैं.
तो आपके पास जो वैल्यूज़ आ जाएंगी, इसको हम वैल्यू लगा के सॉल्व करते हैं अगर, सो दिस विल बी ओमेगा स्क्वायर, दिस इज ओमेगा, राइट। इनको हम सॉल्व कर लेते हैं जी। इसको जब सॉल्व किया स्टूडेंट्स, सो दिस कम्स आउट टू वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, वाई प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, वाई एन टू, सो दिस विल बी कम आउट टू बी वाई स्क्वायर प्लस वाई ओमेगा माइनस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर, राइट, प्लस ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा 4, दैट इज ओमेगा, राइट, माइनस वाई ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यूब, राइट, माइनस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब। तो ये आ गया स्टूडेंट्स। आप यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे, देखिए ये वाली पार्ट और ये कैंसिल हो रहा है, दिस इज आल्सो कैंसलिंग आउट। उसके बाद दिस विल बिकम योर minus omega, because omega 4 can be written as omega cube into omega, this will be 1, this will be 1, so what you are got, y into y square plus 2 minus omega plus omega square माइनस, यहाँ पे आ जाएगा, ये भी आपका प्लस हो गया जी। नाउ वैल्यू ऑफ दिस इज 1, सो आपके पास यहाँ पे आ जाता है 2 minus, this will be minus 1 minus minus 1, so this is 3 is the value here, same value is here, that is y into y square plus 2 minus minus plus, that is 1 3 minus 3, so this is cancel out, so your answer is y cube. So हमारे पास y cube is the choice D, which is the correct choice. So student, with this we have covered most of the type of questions. आपके जो लेटेस्ट पेपर थे JEE 2020 के, हमने वो भी कवर किए हैं, एंड सम क्वेश्चन फ्रॉम द JEE 2019 भी किए। स्टूडेंट, वी हैव ट्राई टू कवर मोस्ट ऑफ द टाइप ऑफ क्वेश्चन। आपका हमने ट्रेस ऑफ द एलिमेंट पे भी क्वेश्चन किया है जी, देन वी हैव डन ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट आल्सो, एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज क्रैमर रूल, उसको भी कवर किया है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट आल्सो वी हैव टच्ड, मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी भी क्वेश्चंस किए हैं। So we have tried to cover most of the topics. So you please keep on practicing the questions, right, and keep on watching our videos. And thank you very much once again student for joining with us.